السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا دیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمیز، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ماہر قانون سردار آفتاب ویگ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی رمیز، کیسے ہیں آپ؟ شکر سر۔ آج ہم نے آپ سے بڑے تیکھے سوال کرنے ہیں، تو آپ ذرا تیاری کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ آئین کے ماہر ہیں اور قانون کے بھی ماہر ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ کیا جج جو ہیں وہ پارلیمان میں پیش ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے رمیز صاحب کہ آج اس ملک کے اندر سارے کا سارا باوشور طبقہ آپ کو ہر وقت آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ملے گا۔ جی جی، میں ہی نہیں بلکہ جو ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا تھوڑا سا بھی ذہن کام کرتا ہے کہ میرے وطن میں کیا ہو رہا ہے، آپ اس سے سوال کریں تو وہ بتائے گا آپ کو کہ جج کیا کر رہے ہیں، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، فوج کیا کر رہی ہے، وہ سب کچھ بتائے گا آپ کو۔ لہٰذا آپ کے سوال کا جو آغاز ہے وہ اس طرح سے میں اس کا جواب دوں گا۔ شورش کشمیری کا ایک شعر سناتا ہوں سر۔ چونکہ تمام یہ سارے کا سارا جو بگاڑ پیدا کیا ہے سیاستدانوں نے، سیاستدانوں کی سوچ نے، اور سیاستدانوں کے ذاتی مفادات نے، اور جو سیاستدانوں نے وہاں پر اپنی انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے، اس نے سارا بگاڑ پیش کیا ہے۔ شورش کشمیری کہہ رہے ہیں کہ میرے دیس کی سیاست کا حال مت پوچھ، طوائف گری ہوئی ہے تماش بینوں میں۔ واہ۔ اب سوال کریں آپ۔ کیا جو جج ہیں، ریسنٹلی آپ نے پارلیمان میں تقریر سنی وزیر اعظم صاحب کی، اور اس سے تاثر تو یہی ملا ہمیں کہ جج جو ہیں ان کو بھی ہم پارلیمان میں بلا کر ان سے سوال و جواب کریں گے۔ تو کیا آئین میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی جج جو ہے وہ پارلیمان میں جا کے جواب دہ ہوگا اپنے فیصلوں کا؟ آپ نے آج کل ایک جملہ سنا ہوا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ جی سر۔ یہ پوری ٹریول کر رہا ہے پورے نیشن میں، تو میں کہتا ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ کسی جاہل کی پیدا کردہ بات ہے کہ جج کو پارلیمنٹ کے سامنے بلا کر اس سے سوال و جواب کیا جائے، اسے جواب دہ بنایا جائے پارلیمنٹ کے اندر بٹھا کر۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات آئین میں نہیں ہے اور آئین کی توہین ہے۔ جو یہ کہتا ہے آئین کی توہین کرتا ہے، سپریم کورٹ کی توہین کرتا ہے۔ تو یہ تو سر آپ نے بڑا دو ٹوک واضح اشارہ دے دیا ہمیں کہ جو جج صاحبان ہیں وہ پارلیمان میں پیش نہیں ہوں۔ رمیز صاحب، آئین دو ٹوک ہوتا ہے۔ سر، آئین ہوتا ہی دو ٹوک ہے، یا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس میں سے جو تشریحات کرنی ہے نا آئین کی، وہ صرف عدلیہ کا اختیار ہے، وہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے، میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے۔ صرف ججز اس کی تشریح کرتے ہیں، قانون پارلیمنٹ بناتی ہے اور تشریح اس کی ججز کرتے ہیں، اور ججز کسی بھی صورت میں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اپنی کارروائی کے لیے۔ تو پھر یہ کاروائی جو ہم نے کل دیکھی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا وزیر اعظم صاحب نے، تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کے فیصلوں پر نظر انداز ہوں وہ؟ کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد وزیر اعظم تو پوری طاقت کے ساتھ آئے گا نا دوبارہ۔ رمیز صاحب، سوچ اس کے پیچھے یہی تھی، یہی سوچ کار فرما تھی کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالا جائے۔ اور ایک بات تاریخ کے طور پر آپ یاد رکھ لیں کہ نون لیگ جب اکیلی تھی تب بھی گزشتہ 35 سال سے اس کا یہی رویہ رہا ہے کہ عدالتوں پر دباؤ ڈالو، افواج پاکستان پر دباؤ ڈالو، یا دباؤ ڈالنے کی ناپاک کوششیں کرو، ناکام کوششیں کرو اور اپنا کام نکالو۔ آڈیو ویڈیو بھی اس میں آ رہی ہیں، جی جی، سکینڈلز بھی اس میں آ رہے ہیں، الزامات کی بچھاڑ اس میں آ رہی ہے، اور آخر کار اس ڈرٹی پالیٹکس کے نتیجے کے طور پر جو کچھ ہمارے ملک کے اندر پروڈکٹ پیش آئی ہے وہ پی ڈی ایم کی صورت میں پیش آئی ہے، جسے پاکستان ڈکیٹ موومنٹ کہا جائے گا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں جناب، پاکستان ڈکیٹ موومنٹ ہے۔ کیوں کہ آج 84 رکنی اس کی وزارت کے ساتھ کیبنٹ میں دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ڈکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ قوم کے گناہگار ہیں، کتنے لوگ میں تو حیران ہوں کہ اگر
ये रजीम चेंज ऑपरेशन होना ही था तो कोई बड़ी आला किस्म की गवर्नमेंट आती जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल के रख देती। ये तो बड़ी अजीब बात है कि चोर डाकू लुटेरे पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाएं और फिर ऐसी कानून साजी करें साजिश के तहत जिससे सुप्रीम कोर्ट पर दबाव पड़े, जिसके सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात को कम किया जाए और जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जमाने भर के सामने तमाशा बना के रख दिया जाए। मैंने अभी आपसे गुजारिश की रमीज साहब कि आप रेडी वाले से पूछ लें, किसी और बंदे से कम शऊर जिसका है ना उससे भी पूछ लें, वो भी ये बात कहेगा कि यार सियासतदान सुप्रीम कोर्ट ना चंगा नहीं करते पाए। सर ये आपका मौक़िफ़ आ गया। अब खान साहब भी कहते हैं कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा और पीडीएम भी कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर तो अदालत ने ये कल जो पेशरफ्त हुई है कि आप लोग बैठें और जाके मुज़ाकरात करें, तो आप देखते हैं कि इसका कोई नतीजा निकलेगा? रमीज साहब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मौजूदा पार्लियामेंट ने, मौजूदा कैबिनेट ने कानून साजी करके कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम से कम कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पर असरअंदाज हुआ जाए, उसके फैसलों पर असरअंदाज हुआ जाए। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तारीख ने ऐसा तमाशा पहले कभी नहीं देखा। आपने सारी पार्लियामेंट देखी हैं, 75 साल हो गए पाकिस्तान में पार्लियामेंट बनते हुए और टूटते हुए, लेकिन ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा खुदगर्जी का जैसा आप देखा है। चूंकि ये पीडीएम की सरिश्त में शामिल है, पीडीएम के शामिल जमातों की सरिश्त में शामिल है कि अपने मफादात के लिए खेलना है, पाकिस्तान को दाव पर लगाना है। कभी मुल्क को दोलख्त कर दिया जाता है और कभी मुल्क के सूबों में अलहदगी की तरीके चलाई जाती हैं और कभी ये कह दिया जाता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ये बालादस्त नहीं है, पार्लियामेंट बालादस्त है। खुदा के बंदो, आज तक अगर कैसा हुआ, अगर ये हादसा हो गया रमीज साहब, शायद आप सवाल ये करें, लेकिन मैं आपके सवाल से जी मेरा अगला सवाल जो है वो यही है कि आइन और पार्लियामान में बालादस्त कौन है, ये अवाम नहीं समझ पा रही है। अच्छा जी, पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि ये जो वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया है, ये एक जाली कोशिश की गई है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिलो दिमाग पर ये असर बिठा दें कि मुझे आज भी 180 अफराद की अक्सरियत हासिल है, आज भी मैं वज़ीर आज़म हूँ और ताकतवर वज़ीर पार्लियामेंट ताकतवर है। यहाँ सदमे की बात यह है रमीज साहब, ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट की तौहीन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि ये दिन भी देखना था हमने, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की रूह को क्या जवाब देंगे ये? अल्लामा इकबाल के ख्वाब जिसने देखा पाकिस्तान बनाने का, उसको क्या जवाब देंगे ये रमीज साहब ये नहीं जानते कि देश है तो सब कुछ है, ऐसे ही तू जे नहीं तो मैं भी नहीं, पर तू जे है तो मैं भी हाँ, अल्लाह दी सो सोने वतना तेरे नाम नाल बेरा ना। क्या ये भूल गए? देश ही नहीं रह रहा। पहले पाकिस्तान तोड़ दिया 71 में, अलग हो गया पाकिस्तान। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी जिद्दोजहद के साथ रह से पाकिस्तान को अपने कदमों में खड़ा किया, लेकिन आज उसी की पार्टी के वारसों ने अपने घर के शहीदों के खून के साथ भी जो है ना वो धोखा किया है, बुरा सलूक किया है और इंसाफ नहीं किया। अगर भुट्टो की शहादत के साथ इंसाफ करते, बेनज़ीर की शहादत के साथ इंसाफ करते, मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत के साथ इंसाफ करते, तो आज ये पीडीएम में शामिल होकर कभी ना बैठे होते, अपनी अलग से सियासत करते। और याद रखिएगा कि हमेशा कभी आपने देखा है, हमेशा रेवड़ किन चीज़ के बनते हैं? रेवड़ भेड़ों के बनते हैं, कुर्बानियों देने वालों के रेवड़ बनते हैं। कुत्तों के कभी रेवड़ आपने नहीं देखे, कुत्तों के रेवड़ बनते ही नहीं हैं। सर ये बात बड़ी बेहतरीन हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी जो है वो आइन की बेसिकली बानी है। आइन उनके कायद ने बनाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। अब ये बताइए, सवाल थोड़ा सा तीखा, दोबारा मैं आपको रिफ्रेश करके वो सुनाता हूँ। वेलकम। कि जो पार्लियामान है उसने आइन बनाया, तो आइन मुकद्दस हुआ कि पार्लियामान? yes. अब ये सवाल देखिए, क्योंकि ये बहुत सारे हलकों के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि जनाब पार्लियामान ने आइन बनाया है, तो पार्लियामान जो है वो ज़्यादा अहमियत के हामिल है एज़ कम्पेयर टू आइन, क्योंकि तहरीफ भी वहाँ से हो सकती है, तशरीह नहीं हो सकती जो अदालत करती है। तो इस पर रोशनी डालिए ज़रा सर। अब आईने पाकिस्तान का आगाज़ जी जी दिबाचा जी जी और प्रीफेस अल्फाज पढ़ लीजिए गौर से सर। आपको साफ तौर पर लिखा हुआ मिल जाएगा। करारदाद मकासद को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ लीजिए, आपको साफ तौर पर भी ये मिल जाएगा लिखा हुआ कि आइन ने
सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियारात दिए हैं जी उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में बालादस्त है। इसका मतलब हुआ कि आइन बालादस्त है, पार्लियामेंट बालादस्त नहीं है। और फिर इनकी जौकरों की एक मजाक खेज जरा बात सुन लीजिए। जब रजीम चेंज, रमीज साहब आप तो बड़े दाना सियाफी हैं, जब रजीम चेंज की ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त जब आधी रात को अदालत खुली थी और पार्लियामेंट के किए हुए फैसले को जी उन्होंने रद्द करके रख दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त पार्लियामेंट बालादस्त नहीं थी, उस वक्त आइन बालादस्त था। ये अपने आइन की बालादस्ती ना मनवाने के लिए अपनी गर्ज के लिए काम कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को बालादस्त माना जाए ताकि आइन इनकी मर्जी के मुताबिक इनके घर की लौंडी बन जाए। जिस तरह ये कानून को पांव तले रौंद कर फाशिज्म के रास्ते पर चल रहे रबी, सब अफसोस की बात है। कौन सा जुल्म है जो कानून की हुक्मरानी के नाम पर यहाँ पर नहीं हो गया? कौन सी ज्यादती है जो पाकिस्तान के शहरियों पर नहीं होगी? हमें भूख से मारा गया, हमें जेलों में फेंक कर मारा गया, हमें हथकड़ियाँ लगाई गई, हमारे बुनियादी हकूक को पामाल किया गया और हमें बताया गया कि मुल्क में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान हैं और वो भी अबूरी मुद्दत के हुक्मरान, ये बताया गया हमें। और हम इस बात पे कौम को ये वाज़े तौर पर बता जाते हैं कि आइन ही बालादस्त है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम नॉट द पार्लियामेंट। ये बात पहले लिखी हुई है, पूरे आइन को पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को पढ़ लें, वो पार्लियामेंट पर हावी है। रजीम चेंज ऑपरेशन की मैंने मिसाल दी है, अगर सुप्रीम कोर्ट हावी ना होती तो पार्लियामेंट के फैसले को तब्दील ना किया जाता। हाँ, ये अपनी बदमाशी करते हुए, सीना जोरी करते हुए, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए जिस तरह इन्होंने नैब कवानीन को ख़त्म किया है NRO2 लेने के लिए, उस तरह अगर पार्लियामेंट में बैठकर इन्हीं के, हाय मैं हैरान हूँ, एक कुल्हाड़ा जो है ना वो जोर जोर से दरख्त के ऊपर रमीज साहब चल रहा था जी, तो जोर जोर से चोटें लगा रहा था। दरख्त ने चीख कर कहा, और बेगैरत कुल्हाड़े देख तो सही कि किसके सहारे पे चल रहा है, तेरे जिसकी वजह से तेरी ज़रब मुझ पर लगती है वो भी तो मैं ही हूँ, वो लकड़ी भी तो मैं ही हूँ। और जिस पार्लियामेंट की वजह से जिस ये बरसर इक़्तिदार आ गए, अगर पार्लियामेंट ने उस वक़्त नाम डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को ख़त्म किया होता और वापसी पर फैसले को तारीख का पहिया घुमाकर, उल्टा घुमाकर अगर उस पर वापस ना ले गई होती पार्लियामेंट को उसी मुकाम पर जिस मुकाम पर पहले इमरान खान असम्बली तोड़ने से पहले मौजूद थे, तो आज जनाब ये इनका नामो निशान भी ना मिलता, ना बैठे इनको। हाँ, एक बात और बता दूं, कौम को पैगाम दे रहा हूं मैं बड़े वाज़ेह तौर पर, रमीज साहब, अगर पार्लियामेंट को बालादस्त करार दिया गया तो चूंकि हुकूमतें बदलती रहती हैं, हर आने वाली हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना के रख देगी, हाथ का खिलौना बना के रख देगी और एक तमाशा बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, उसकी अहमियत कोई नहीं रह जाएगी। और जब सुप्रीम कोर्ट की अहमियत नहीं रह जाएगी तो आइन की अहमियत नहीं रह जाएगी, जब आइन की अहमियत नहीं रह जाएगी तो खुदा न खास्ता खाकम बदन पाकिस्तान और टूटेगा और हम तबाही की तरफ जाएंगे। सर ये अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान टूटे। तो मैं और आफ्ताब साहब इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि अभी तक पूरी गुफ्तगू में कि इनका भी जो लहजा था वो यही बता रहा था कि मुज़ाकरात को कामयाब होना चाहिए क्योंकि इसका फ़ायदा आवाम को होगा। इसी दुआ और ख्वाहिश के साथ अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।